Hello students, so now I am going to start the some important nucleophilic, some important types of nucleophilic substitution reaction. And it means substitution of nucleophile by nucleophile. So this is a alkyl halide. Alkyl halide electronegativity of X is more than carbon. So share page electron shifted toward the halogen atom. R acquire positive charge and halogen acquire negative charge. तो पॉजिटिव चार्ज आर पर है तो इसको अट्रैक्ट करेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल. तो व्हेन एल्किल हाइलाइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक केशियन, यानी एल्कोहलिक केशियन में न्यूक्लियोफाइल इज द साइनाइड आयन, यानी साइनाइड यानी हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय द साइनाइड आयन टू फॉर्म एल्किल साइनाइड एंड KX. व्हेन एल्किल हाइलाइड रिएक्ट विद AgCN, एल्कोहलिक AgCN, तो एल्किल आइसोसाइनाइड विल बी फॉर्म. When alkyl halide react with potassium nitrite, alkyl nitrite will be formed. When alkyl halide react with AgNO2, that is called nitroalkane will be formed. And here is the halogen atom replaced by the cyanide ion. Here is the halogen atom replaced by isocyanide, and here is the halogen atom replaced by nitrite group. Here is the halogen atom replaced by nitro group. And it means when alkyl halide react with alcoholic ammonia, देखिए H plus NH2, NH2 is the nucleophile. The hydrogen atom R plus combined with NH2 and H plus combined with hydrogen, and to form alkyl amine plus HX. Next में alkyl halide react with sodium alkylate, sodium alkylate, NaC triple bond Cr. Na is the positive charge, C is the negative charge. तो ये पोर्शन दिस इज न्यूक्लियोफाइल. अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. तो RC ट्रिपल बॉन्ड CR. यह रिएक्शन हम जब यूज करेंगे जब मान लो क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाउ यू कन्वर्ट लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन या एल्किल हाइलाइड टू एल्काइन. तो दिस रिएक्शन आर एप्लीकेबल इन दैट केस इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. नेक्स्ट में एल्किल हाइलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड. दिस इज एल्कोक्साइड. एल्कोक्साइड इज ए न्यूक्लियोफाइल. OR एल्कोक्साइड, मान लो सपोज OCH3 तो मेथॉक्साइड, OC2H5 एथॉक्साइड. तो OR सब्स्टिट्यूटेड टू द R टू फॉर्म ROR डैश प्लस NaX, दैट इज कॉल्ड ईथर. तो दिस इज अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ether. This is the most common type of reaction in of nucleophilic substitution reaction. Hello student, now I am going to start the topic the stereochemical aspect of nucleophilic substitution reaction. Stereochemical aspect of nucleophilic substitution reaction. तो that is इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी मीन्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हम आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थोड़ा सा बताया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ कि व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी. ऑप्टिकल एक्टिविटी मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज ऑप्टिकल activity. If the plane polarized light rotate clockwise direction, that is called destoisomers. If plane polarized light rotate towards the anti-clockwise direction, is known as Leo-isomers. In other words, में the isomers which rotate the plane polarized light to the clockwise direction is known as destoisomers, and the isomers which rotate the plane polarized light towards the anti-clockwise direction is known as Leo-isomers. So what are the condition for optical activity? यानी मीन्स कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, कौन से कंपाउंड नहीं शो करेंगे. तो व्हाट आर द कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी. तो कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी नंबर 1, the compound must have chiral carbon, यानी the compound must have chiral carbon
या ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। तो कंपाउंड में आप सर्च करेंगे किसी भी कंपाउंड के पास कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं, यानी कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट वन कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन किसे कहते हैं, जैसे सपोज दैट दिस इज द कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, द कार्बन whose 4 valency are satisfied by 4 different group is known as chiral carbon। the carbon whose 4 valency are satisfied by 4 different group is known as chiral carbon। तो देखिए इस कार्बन को हम chiral carbon क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी ए से सेटिस्फाइड है, दूसरी बी से, तीसरी ई से, चौथी डी से, इसलिए ए कार्बन आर दिस कार्बन इज कायरल कार्बन या इसी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। तो कंपाउंड का सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, हर कार्बन को ध्यान से देखोगे कि कौन सा कार्बन इसमें कायरल कार्बन है, यानी जिस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो। द कार्बन व्हिच 4 वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप इज नोन एज कायरल कार्बन। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कायरल कार्बन। तो देखिए जैसे एग्जांपल एम कंपाउंड दिए CH3 CHBr CClOH CH2 COH CH3। तो आप क्या करेंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन है उसको आप समझिए। देखिए जैसे इस कार्बन के बारे में देखिए, तो इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड बाई सेम हाइड्रोजन एटम, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। अब इस कार्बन को देखिए, इसकी एक 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड बाई H, अदर वैलेंसी सेटिस्फाइड बाई CH3 एंड ये वैलेंसी जो सेटिस्फाइड है ये इतने बड़े ग्रुप से सेटिस्फाइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और 4th वैलेंसी सेटिस्फाइड बाई ब्रोमीन। तो दिस कार्बन इज द कायरल कार्बन। अब इस कार्बन के बारे में देखिए, इस कार्बन की ये वैलेंसी सेटिस्फाइड बाई देखिए OH से, दिस वैलेंसी सेटिस्फाइड बाई Cl एंड दिस वैलेंसी सेटिस्फाइड बाई इतनी बड़े ग्रुप से सेटिस्फाइड है, एंड 4th वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाई इस ग्रुप से सेटिस्फाइड है। तो दिस कार्बन इज आल्सो कायरल कार्बन। अब इस कार्बन के बारे में देखिए, इसकी दो वैलेंसी सेम हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, इसलिए नॉट कायरल कार्बन। इस कार्बन को देखिए, इसकी चारों वैलेंसी 4 वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप, मींस 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय OH, अदर वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय सेकंड वैलेंसी H, थर्ड वैलेंसी COOH एंड 4th वैलेंसी इतने बड़े ग्रुप से सेटिस्फाइड है। तो दिस इज इसमें टोटल नंबर आपके कायरल कार्बन है 1 2 3 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3। देयरफॉर दिस कंपाउंड शो द फिनोमेना ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो कंपाउंड विच हैव एट लीस्ट 1 कायरल कार्बन शो द फिनोमेना ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, शो कायरलिटी। शो कायरलिटी मतलब the object whose mirror image are not superimposable, the object whose mirror image are not superimposable are known as chiral object। हाँ, तो अभी हम बताए थे आप लोगों को कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, द कंपाउंड मस्ट हैव कायरल कार्बन एंड द कंपाउंड शो द फिनोमेना ऑफ कायरलिटी। कायरलिटी मींस द ऑब्जेक्ट हुज मिरर इमेज आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। जैसे देखिए एक एग्जांपल है ऑप्टिकल एक्टिविटी में, एक कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाई 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप। इस कार्बन की 1 वैलेंसी OH, सेकेंड CH3, थर्ड H, 4th COOH। दिस इज अ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन है तो शो द फिनोमेना ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, शो द फिनोमेना ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब इसका आप मिरर इमेज देखिए, दिस इज अ मिरर। तो मिरर इमेज में आप देखेंगे इसका जो मिरर इमेज है वो नॉट सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेज आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। नॉट सुपर इम्पोजिबल मतलब इसको जस्ट ऐसे उठा के आप इसके ऊपर रखिए ऐसे, तो सुपर इम्पोज ये नहीं करेगा। जैसे हम आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताए थे, जैसे सपोज दैट दिस इज हमारा लेफ्ट हैंड है, मिरर इमेज ऐसे दिखेगा। अब इसको इस तरह से आप उठा के रखोगे, दिस इज नॉट सुपर इम्पोजिबल। नॉट सुपर इम्पोजिबल मतलब शो द फिनोमेना ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। एकदम इस तरह से उठा कर रखेंगे कंपाउंड, ये नहीं कि आप इस तरह से रख देंगे, इस तरह से रख देंगे तो सुपर इम्पोज कर जाएगा। एज सच उठा के इस पर रखो, अगर सुपर इम्पोज कर गया तो डज नॉट शो द फिनोमेना ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अगर इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है तो शो द फिनोमेना ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म।
तो इस तरह से आप चेक करेंगे कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट कायरल है और कौन सा ए कायरल है। तो ए कायरल समझने के लिए कार्बन उसमें कायरलिटी एब्सेंट होगी। कायरलिटी एब्सेंट का मतलब कि कार्बन की 1 या 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय सेम ग्रुप, तो वो ए कायरल हो जाएगा। इफ कार्बन की ऑल वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप, तो दैट इज कॉल्ड कायरल ऑब्जेक्ट। तो कुछ सम बेसिक टर्म है रिलेटेड टू द ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू द